ایک در جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شان بھائی۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر قبلہ اور سب آپ تمام قبلاؤں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس غریب خانے کو شرف بخشا۔ اور بس ایک اشعار پڑھوں، ایک شعر پڑھوں گا اور آپ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ حسین بانٹ رہے ہیں، اسی در سے ملتا ہے تو وہی بانٹنے والا ہے۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے۔ وہ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے۔ کفن میں اس کے لب پہ تو حیات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ آپ لوگ کے ٹائم کا بہت میں سمجھتا ہوں، اور بس میں قبلہ صاحب کو ممنون کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا آپ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم۔ ٹھیک برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومین و
مرحومات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وعس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الحلائق بقدرته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ تمام صاحبان کا یہاں پہ آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جیسا تو چاہتا ویسا عبد خدا بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی کاظمی صاحب کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ سارے صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سید احمد شاہ کاظمی ولد سید محمد شاہ کاظمی، موسیٰ منصور ولد عاشور علی محمد حسین، رقیہ بیگم بنت روزی علی، مریم بیگم بنت محمد ابراہیم، مہر بانو بنت روزی علی، اور اس کے علاوہ اپنے اپنے مرحومین جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے، اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی بالخصوص جن مرحومین و مرحومات کے اصال ثواب کے لیے آج کا اہتمام کیا گیا ہے
परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद फरमा, जितने हाज़रीन हैं इनके मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमा, मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके तमाम के दराजात को बुलंद फरमा। नासिर अब्बास विलाई साहब अभी कुछ दिन हुए नासिर अब्बास विलाई साहब और उसके अलावा भी काफ़ी हमारे मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। परवरदिगार तमाम के दराजात को बुलंद फरमा। जुमला मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अज़ाब क़ब्र से महफूज़ फरमा, अज़ाब हशर में कामयाब हो। हम सब को मरने से पहले सही मानों में तौबा करने की तौफीक, अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक। खालिक व मालिक जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल वाजिला अता फरमा। बिलखुसूस पूरी इंसानियत इस वायरस की वजह से परेशान है। परवरदिगार इस वायरस से पूरी इंसानियत को निजात। सारे साहिबान अपने अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए और अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाबाज़ बुलंद खालिक के दो जहां की बेमिसल बेमिसाल किताब से सूरह मुबारक लुक़मान की एक आया मजीदा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें खालिक के कायनात ने वालिदैन के हवाले से तज़किरा किया है और फिर ख़ुसूसियत के साथ माँ का तज़किरा किया है और फिर उसके बाद हमें उनका किस तरह से एहतराम करना है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, उसकी तरफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मजीदा में हमें मुतवज्जे किया है। मेरे सारे बुज़ुर्गवार यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनके सामने गुज़ारिशात तर्ज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे आप शुआरा हज़रात जानते हैं कि जब काफ़ी सारे शुआरा हों तो फिर कलाम पढ़ते हुए कलाम पढ़ने वाला परेशान हो जाता है। तो मैं जो कुछ भी हूँ वो इन्हीं की दुआओं से हूँ और इन्हीं की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि चंद मारूज़ात खालिक के कायनात ने इस आया मजीदा में जिस तरह से हमें पैगाम दिया है वो बड़ा काबिल गौर है। खालिक फरमाता है ववस्सैनल इंसाना, हमने वसीयत की इंसान को, हमने वसीयत फरमाई है इंसान को। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि हमने वसीयत फरमाई है मुसलमानों को। खालिक के कायनात ने इस हवाले से फरमाया है कि हमने वसीयत फरमाई है अरब वालों को कि जिनमें पैगंबर तशरीफ लाए। चूँकि आगे जिस बात की तरफ मुतवज्जे किया है उसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं है, खालिक के कायनात ने एक निज़ाम की तरफ हमें मुतवज्जे किया है। खालिक फरमाता है ववस्सैनल इंसाना, हमने इंसान को वसीयत फरमाई है बेवालिदैहि, उसके माँ और बाप के हवाले से। कुरान हकीम में बहुत ज़्यादा मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे वालिदैन यानी माँ और बाप का इकट्ठे तज़किरा हुआ है और कुछ मकामात ऐसे भी हैं कि जहाँ पर अलहदा अलहदा इनका तज़किरा वालिदैन का किया गया है। एक मरतबा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले, एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलाम। चूँकि मजलिस इसाले सवाब के हवाले से है और वालिदैन के हवाले से है और बिलखुसूस वालिद गिरामी के काज़मी भाई के वालिद गिरामी के हवाले से भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुल्ली तौर पे मरहूमीन व मरहूमात के हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ कर सकूँ। खालिक फरमाता है हमने इंसान को वसीयत फरमाई वालिदैन के लिए, यानी वालिदैन के बारे में। इतनी बात
करने के बाद आगे खालिक फरमाता है हमालतहु उम्मुहु, ये इस इंसान की माँ है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुसलमान की माँ का सिर्फ तज़किरा नहीं यहाँ पे हुआ, या किसी मुल्क के रहने वाले बंदे का तज़किरा नहीं किया। खालिक फरमाता है वह हमालतहु उम्मुहु, और ये उसकी माँ है कि जो उसको उठाए रखती है। हमालतहु उम्मुहु, ये उसकी माँ है। बल्कि मैं अगर अपने अल्फाज में अर्ज करूं तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि हमने वालिदैन के बारे में वसीयत फरमाई है, और ये तुम्हारी माँ है कि जिसने तुम्हें उस वक्त उठाए रखा जब कोई तुम्हारा उठाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खालिक कायनात ने इस बात की तरफ मुतवज्जे करके हमें जो अगले लम्हे की तरफ तवज्जो फरमाई, हमें मुतवज्जे किया है, वो बड़ा काबिले गौर है, जिसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं और हम इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं। खालिक फरमाता है वो तेरी माँ है जिसने तुझे उठाए रखा, वाहनन अला वाहनिन, और सिर्फ उठाए नहीं रखा, वो तकलीफों पे तकलीफें उठाती रही, वो ज़हमत पे ज़हमत उठाती रही। आप जरा गौर तो कीजिए कि वही मस्तूर होती है, वही औरत होती है जिसका बचपना, बचपने के बाद लड़कपन, और लड़कपन के बाद फिर जब उसकी शादी हो जाती है। अगर आप इसी ड्यूरेशन को थोड़ा सा चेक करें तो जब तक कंवारी थी उसका उठना अपनी मर्जी का था, उसका बैठना अपनी मर्जी का था, उसका खाना अपनी मर्जी का था। एक मरतबा दरूद पढ़े मोहम्मद उसका खाना अपनी मर्जी का था, उसका पीना अपनी मर्जी का था, उसका चलना अपनी मर्जी का था, उसका फिरना अपनी मर्जी का था। एक मरतबा फिर दरूद पढ़ लो। और बाहर जेडे बंदे आए ने उन्होंने इको बारी अंदर गाल दो। एक मरतबा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले एक मरतबा फिर बावाज़े बुलंद सलावत। खालिक फरमाता है वाहनन अला वाहनिन, वो तकलीफ पे तकलीफ उठाती है, ज़हमत पे ज़हमत उठाती है। यानी वही औरत के जिसका खाना पीना हर चीज अपनी मर्जी का था, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी अमानत दे के इसे अपना अमीन बनाया है, तो अमीन बनने के बाद न इसका खाना अपनी मर्जी का है, न पीना अपनी मर्जी का है, न चलना अपनी मर्जी का है, न फिरना अपनी मर्जी का है, न सोना अपनी मर्जी का है, न जागना अपनी मर्जी का है। कभी हजरत इंसान ने सोचा है कि इसने सारी अपनी मर्जी जो कुर्बान कर दी है वो की किसके लिए है? यानी पूरी की पूरी अपनी जिंदगी का तरीकाकार जो है वो सारे का सारा बदल दिया। किसके लिए? हर इंसान ये कहेगा उस बच्चे के लिए कि जो अल्लाह ने उसके बतन में जिसको रखा है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मां के बतन में जो बच्चा है, क्या मां को इस बात का यकीन है कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो क्या वो सांस भी लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि अब तो साइंस को यहां पे आपने देखा बड़ी सारी चीजें साइंस की फेल हो चुकी हैं। रात को वेदर चैनल वाले कुछ बताते हैं, सुबह को कुछ और होता है। निकली होती है। ये निजाम कुदरत है कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, वो खालिक जो चाहता है वो ही होता है। यानी मां को यकीन नहीं है कि वो जिंदा दुनिया में आएगा, लेकिन फिर भी अपना सारा कुछ उसने बदल दिया है, अपना सुकून आराम सारे का सारा कुर्बान कर लिया है। क्यों? अगर आप किसी मां से पूछे ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो यही कहेगी कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा हिस्सा है, मेरे बदन का हिस्सा है, मैं इसलिए ये इस तरह से कर रही हूं ताकि इसको तकलीफ ना हो। यानी मां ने पूरा सुकून अपना कुर्बान कर दिया उसके लिए कि जो अभी दुनिया में आया नहीं।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्सियत आई और आके अर्ज करने लगा कि मौला मेरी वालिदा जो है वो बहुत ज्यादा नहीफ हैं, खाने पीने का सारा सिलसिला मैं करता हूँ, हत्ता कि बाकी मामलात जिंदगी जो है वो भी खुद से नहीं कर सकती, मैं सारे का सारा उनका करता हूँ। तो मौला ये बताएं कि क्या जो मेरी माँ ने मुझे पाला है, मेरी खिदमत की है, मैंने उसका हक अदा कर दिया है? हम तो 4 पाउंड दे के 4 पाउंड भेज के बड़े रोब डालते हैं ना वालिदैन पे, और पता नहीं क्या कुछ उन्हें बातें सुनाते हैं, यहाँ पे भी वहां पे भी। वो अर्ज करने लगा कि मौला मैं सारी खिदमत अब कर रहा हूँ, मेरी वालिदा इस काबिल नहीं है कि वो अपने काम जो है वो खुद कर सके, क्या मैंने हक अदा कर दिया है? तो मौला देख के फरमाते हैं हक की बात करता है, तू तो उस एक लम्हे की भी कीमत अदा नहीं कर सकता जो उसने तुझे अपने बतन में उठाए रखा था, और यकीन भी नहीं है कि ये दुनिया में आएगा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मासूम से एक मैंने इस रिवायत को, इस हदीस को जो है वो पढ़ा, जिसके बारे में मौला ने फरमाया है, एक शख्स ने मौला से आके पूछा, मौला जब माँ इतनी जहमत उठाती है तो अल्लाह उसे कोई अजर भी देगा? यानी इतनी तकलीफें उठा रही है, सारा कुछ अपना उसने छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी की रूटीन ही तब्दील कर दिया, तो अल्लाह भी उसे कुछ अता करेगा क्या? उसको अजर भी मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगी? आप सबको मालूम है, और अक्सर औकात यही कहा जाता है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त आए तो माँ को एक किस्म की दूसरी जिंदगी मिलती है। यानी ये अल्लाह पे है कि वो उसे जिंदा रखना चाहता है या उसकी जो है वो जिंदगी को लेना चाहता, लेकिन वो उसका एक मौत और जिंदगी का लम्हा होता है कि जब माँ औलाद को इस दुनिया में लाने का सबब बनती है। मौला से जब पूछा गया ना, मौला क्या उसे भी कुछ अजर मिलेगा कि जो इतनी जहमत उठाती है? तो मौला देख के फरमाते हैं कि वो लम्हा, कि जिस लम्हे पे माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का सबब बनती है, उस तकलीफ के इवज में अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं उसकी जजा में जो इस दुनिया में लाने का सबब बनी है। ऐसे नहीं मासूम ने फरमाया कि बच्चे की तरबियत की जो पहली मंजिल है वो माँ की गोद है, इसलिए कि माँ को अल्लाह ने इस तरह से बना दिया है कि अब माँ की जिम्मेदारी है कि वो उसको बेहतर से बेहतर आगे लेके चले। एक मरतबा दरूद पढ़े मोहम्मद मैं जल्दी से आगे जाना चाहता हूँ। वफ़िसालुहु आमैनी, फिर ये माँ है कि जो 2 साल ग़िज़ा देती है, खाती कुछ है और पिलाती कुछ है। हमें दूध की शक्ल में ये हमें फकत ये नहीं देखना चाहिए कि दूध की शक्ल में हमें दिया जा रहा है, बल्कि ये माँ की कुर्बानी है कि जो अपना खून हमें पिलाकर परवान चढ़ाने का सबब बनती है। ये वही खून है कि जिसे अल्लाह दूध में तब्दील कर देता है। अब क्या किया जाए? ये देखिए, एक निजाम का खालिक कायनात ने तज़किरा करने के बाद आगे खालिक फरमाता है, अनिश्कुरली, अल्लाहु अकबर, मेरा शुक्रिया अदा करो। रहे कहां पे? कौन पालता रहा? किसने सब कुछ कुर्बान किया? मां ने। और मां की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने जिसे जिम्मेदारी अता की है उसी का नाम बाप है। इस सारे नानो नफके के एहतिमाम और बंदोबस्त की जिम्मेदारी अल्लाह ने जिसे दी है उसका नाम है बाप। मां को जिसके जरिए से तहफ्फुज अल्लाह ने दिया है उसका नाम है बाप। बाप को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बेशक बेशक। इसे प्रोटेक्शन के लिए वहां पे भेजा गया है कि ये अपनी ज़ौजा को इतना मकाम और इज्जत अता करे, ऐसा रिश्ता अपनी ज़ौजा के साथ कायम रखे कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने रहमत का रिश्ता करार दिया है और मवद्दत का रिश्ता करार दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घर में जो
بربادی یا یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی جڑ فقط عورت نہیں ہوتی، ہاں مرد بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا جو معیار اللہ نے قائم کیا ہے میں اس رحمت کا سبب بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کر۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے بات کو روکا نہیں، چونکہ آگے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آگے خالق فرماتا ہے انشکر لی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے اور والدین کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ ہم تو اس والد کو والد ہی نہیں مانتے جو ہمیں حصہ نہ دے، جو بینیفٹ کا حصہ ہمیں نہ دے، جو مال ہم تک قربان نہ کرنے کے لیے نہ کرے۔ ہم نہ ماں کو مانتے ہیں نہ باپ کو مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مالک تیرا شکریہ تو ادا کرنے کی سمجھ آ گئی، والدین کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ میں سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے شکریہ کے لیے تو ہم نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب والدین کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ آپ دیکھیے معصومین نے متوجہ کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے باپ کے قدموں سے آگے اپنے قدم نہ رکھنا، اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یہ پیغمبر کے لیے تو قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جس نے پیغمبر کی آواز سے آواز کو بلند کیا اس کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے۔ وہی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین کے سامنے بلند آواز نہ کرنا۔ پیغمبر نے متوجہ کیا یہ بہت بڑے اللہ کی نعمت ہے جو ماں اور باپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ مالک تیرا شکریہ تو مصلی بچھا کے ہم نے ادا کر دیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ والدین کا شکریہ کیسے ادا کرے؟ میں کہا کرتا ہوں کوئی کرے یا نہ کرے، کم از کم پیغمبر کی امت اور آل پیغمبر سے محبت کرنے والوں کا شکریہ کا حق بنتا ہے کہ جب بھی ماں کو دیکھے، جب بھی باپ کو دیکھے، دونوں ہاتھ اپنے پیشانی پہ رکھ کے انہیں کہا کرے کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے ہماری تربیت مذہب اور محبت اہل بیت پہ کر کے ہمیں وہ پروان چڑھایا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ محمد صلی اور دیکھیے یہ حضرت انسان، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی سے بات کو سمیٹوں، اسے اپنی عظمت کو سمجھنا چاہیے، بہت خوب، اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ خالق کائنات ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا جو خالق ہے وہ ذات توحید ہے، اور پوری کائنات جس کی محتاج ہے وہی ذات توحید ہے۔ چاہے جس کو جتنا بڑا منصب مل جائے، جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ کے ساتھ چیزیں مخصوص ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہر کوئی اس سے محتاج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی دعا کو وہ رد ہی نہیں کرتا، کوئی ساری زندگی دعا کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اعمال، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بندہ چاہے ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے اسے کچھ نہیں ملتا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اگر وہ 3 دن روٹیاں دے دے تو اللہ سورہ دہر کو نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، یہ حضرت انسان کو اپنی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، لیکن فخر جس پہ کیا ہے وہ اولاد آدم ہے، آدم کی اولاد۔ خالق فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے احسن پیدا کیا ہے۔ ہم کسی سے نفرت کر رہے ہیں وہ کانا ہے، کسی سے نفرت کر رہے ہیں وہ گنجا ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں وہ لولا ہے،
किसी को कह रहे हैं लंगड़ा, अल्लाह कहता है मैंने इसे ahsan पैदा किया। हमें समझ नहीं आ गया कि हमने अल्लाह की इताअत कितनी की है या अल्लाह को कितना माना है। वो कह रहे हैं मैंने इसे ahsan पैदा किया है। एक मर्तबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और फकत ahsan पैदा नहीं किया बल्कि इसकी अजमत हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। खालिक के कायनात हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है यब्ना आदम खलक़तुल अशिया कुल्लाहा ली अजलिका। ये कायनात में जो कुछ भी तुझे नजर आ रहा है, जिन जिन चीजों से इस्तेफादा कर रहा है, अल्लाह ऐलान करके कह रहा है ऐ आदम की औलाद मैंने तेरे लिए पैदा किया। कायनात का जर्रा जर्रा किसके लिए पैदा हुआ है? औलादे आदम के लिए। लेकिन औलादे आदम भी तो किसी मकसद के लिए पैदा हुई है ना। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं औलादे आदम को पैदा कर दिया कि वो देखता रहे कि मरते कैसे हैं, जिंदा कैसे होते हैं। फरमाया कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए पैदा किया है। वह खलक तो कले अजली, और ऐ बंदे तुझे मैं अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। तो जिसने अपने लिए पैदा किया है वो चाहता है कि उसका बंदा वैसा बन के जिंदगी गुजारे जैसा वो चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा वो चाहता है वैसा जिंदगी गुजारे। आप बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मैं दो चार बातें और अर्ज करके ज़हमत को तमाम कर दूंगा। खालिक के कायनात ने एक नक्शा पेश किया है हमारे सामने। मैं इसलिए ये अर्ज करने लगा हूं कि ताकि शायद हम इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और भी बड़ी सारी बातें थी, मैं अगर वक्त हुआ तो अर्ज करूंगा, लेकिन इस बात को जरूर अर्ज करना चाहूँ। खालिक के कायनात सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाता है फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग मुजरिमों से पूछेंगे। ये मुजरिम है कौन? इंसान को अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए, अपने मकाम को पहचानना चाहिए। अब फैसला हो चुका है कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। अब फैसले के बाद पूछा जा रहा है फी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती पूछ रहे हैं मुजरिमीन से, जो दोज़खी हैं। इस तरह से अगर अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाए, जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। मा साला काकुम फी सकर। यार इतना तो बताओ कि ये जहन्नुम में जा किस वजह से रहे। हम एक दूसरे से हालात पूछते नहीं फोन करके, कैसा राजी, आपको कोविड वगैरह तो नहीं हुआ, आप बचे रहे हैं ना, बच्चे ठीक है, सारा कुछ ठीक है। वहां पे जन्नती जहन्नुमियों से पूछ रहे हैं कि यार बताओ तो सही, ये जलती आग में जा क्यों रहे हो। अल्लाह ने ये जो बयान फरमाया है इसलिए नहीं बयान फरमाया कि हम फकत तिलावत करें, कुरान चूमे और उसके बाद उसको वापस रख दें। अल्लाह ने हमें मुतवज्जे किया है। ये कुरान की आयत है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पूछेगा वो जन्नती पूछेंगे कि बताओ तो सही मा साला का कुम फी सकर, ये जहन्नुम के जाने का सबब क्या है। जो पहला सबब उन्होंने बयान किया, बेशक खुद भी आप जाके देख लीजिएगा। वो कहते हैं कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। पहली बात जो वो बताएंगे ना जहन्नुम में जाने का सबब, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते। 14-14 घंटे की शिफ्ट, 12-12 घंटे की शिफ्ट, 18-18 घंटे की शिफ्ट, माल जमा हो रहा है लेकिन अल्लाह को याद करने वाले नहीं है। लम नकू मिनल मुसल्लीन, क्या कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते। अब नमाज का मौजू एक अपने मकाम पे है, मैं उस तरफ नहीं जाता। फिर दूसरी वजह वो पूछेंगे अच्छा कोई और भी बताओ, जिस तरह हम एक दूसरे से पूछते हैं। वो यार चलो एक तो पता चल गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नुम में चले गए, इसलिए कि बंदे यहीं पे ना रह जाए कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो फकत जहन्नुम में जाएगा, जो नमाज पढ़ लेगा और बाकी सारा कुछ छोड़ देगा उसके लिए जन्नत पक्की है। ऐसा नहीं है। कुरान में वो आगे कहते हैं वकालू लम नकू नुतइमुल मिस्कीन। दूसरा हमारा जहन्नुम में जाने का सबब ये है कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे।
ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਨ ना चंगा वे फलानी फलानी शख्सियत मौजूद थी, हमने दावत की है उसकी, बहुत बड़ा नाम होगा यकीनन, फिर उसको सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया जाएगा। अल्लाह इनके खिलाए हुए को नहीं बयान फरमा रहा, अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुमने ये बताओ कि कभी किसी मिस्कीन को भी खाना खिलाया है या नहीं खिलाया। और जहन्नुम में जाने वाला इकरार कर रहा है कि मैं जहन्नुम में इसलिए जा रहा हूं कि मैंने मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाया। ये सेल्फियां भी मुंह पे पड़ेंगी। एक मर्तबा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले जहन्नुम में जाने का सबब क्या है कि मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, चौधरियां खुआंदे सन। बड़े बड़े ऐसे चौधरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई हो तो बुरा ना महसूस कर जाए, मैं वैसे वो बड़ी शख्सियत की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको चुन चुन के खाना उनको खिलाया जाता है, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए, ये तो हमारी शादियों में भी रिवाज है कि अगर कोई गरीब आ जाए तो उसे वहां पे रोक दिया जाता है ना, ये जांजियां वास्ते में, यानी जिनका हक बनता है उन्हें रोका जाता है, और जो अलल ऐलान फिस्को फजूर कर रहे हैं उनको खिलाया जाता है, और उसका सबब जहन्नुम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जहन्नमी खुद कह रहे हैं। अगली बात जहन्नुम में जाने की जो उन्होंने बयान की, चूंकि साले सवाब की मजलिस है, नाराज ना हो जाना आप। आगे क्या कहा, वकुन्ना नहूजु माअल खाइज़ीन। तीसरी वजह हमारे जहन्नुम जाने की ये है कि हम फोश गोई करने वालों के साथ बैठते थे और महफिलें जमाते थे सारी सारी रात, नमाज़ां गईयां, सारी रात गप्पे, पता नहीं कभी किसी की गीबत हो रही है, कभी किसी के कपड़े उतारे जा रहे हैं, कभी किसी को जलील किया जा रहा है, कभी किसी को जलील किया जा रहा है। इन तमाम कामों की वजह से मकाम कौन सा मिलेगा? हाजी साहब भी हुए लेकिन महफिल उनकी ऐसी हुई तो कहां पे जाएंगे? इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि वैल मुसल्लीन के लिए है। लिहाजा क्या है, वकुन्ना नहूज़ु माअल खाइज़ीन, ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, ऐसी महफिलें सजाते थे कि जिनकी वजह से हम जहन्नुम में चले गए। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम यौमिद्दीन को जुटलाते थे, इनकार कर देते थे। आगे हुआ क्या, ये सारे काम जो किए हैं ना, एक भरोसा है ना, फिर भी उस भरोसे पे भी अल्लाह जो है वो मुतवज्जे कर रहा है। इसलिए कि भरोसे वाले भी शफात उसकी करेंगे कि जो आमाल में सच्चा होगा, जो किरदार में सच्चा होगा। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है कि कल कोई मुझ पे फतवा लगा दे, खाके कुरान कह रहा है फमा तनफाउहुम शफाअतुश शाफिईन। इन तमाम अमाल का नतीजा ये निकलेगा कि कयामत के दिन शफात करने वालों की शफात भी कबूल नहीं की जाए। अगर शफात लेनी है तो उनका किरदार अपनाना पड़ेगा कि जिनकी शफात के हम मुतलाशी हैं। इसलिए कि मौत ने हर किसी पे आ जाना है। मौत से बचने वाला कोई इंसान नहीं है, ना कोई पहले बचा है, ना अब बचेगा, ना बाद में कोई बचने वाला है। ये ऐसा हकीकत है, ये ऐसा अल्लाह का अटल फैसला है कि मौत हर एक पे, किसी मजहब, किसी फिरके की कोई बचत नहीं, हर किसी पे मौत ने आना है। वो अक्सर जुमला नहीं कहा जाता, उलमा इकराम बुजुर्गवार भी कहते हैं कि जब मुरसल आदम ना रहे। और देखिए ये जुमला इन दिनों में मैंने पहले भी एक दो मरतबा कहा, फिर अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है तो एक तरतीब के साथ भेजा है। ये देखा ना, अक्सर औकात सादात के हवाले से मैं एक मिसाल देता हूँ, जब कहीं भी कोई रिश्ता वगैरह करते हैं ना तो वो पूछते हैं जी आपका शजरा आपका क्या आपके पास है? उस शजरे का मतलब क्या है कि बाप कौन था, दादा कौन है, परदादा कौन है, चड़दादा कौन है, ऊपर तक जाता है वो सारे का सारा सिलसिला। इसीलिए शजरे का पूछा जाता है ना। जब पैदा हुआ
تو ترتیب کے ساتھ حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا اور چلتے 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 ہم تک پہنچا بالکل ترتیب کے ساتھ. لیکن جب لے کے جاتا ہے پھر ترتیب سے نہیں لے کے جاتا. چاہیے تو یہ نا کہ پہلے دادا جاتا یا ابا جی جاتے. دادا اور ابا جی موجود ہوتے ہیں